Hello, dear students. So, we are moving towards the end of the chapter, Sectors of Indian Economy, Chapter 2, Economics, Class 10th. And right now, what we are discussing, what we discussed in the last video, it was the combination, it was the contrast between the people who are working in the organized and the unorganized sector. What is the difference? The people who are working in the unorganized sector and organized sector, how are they facing problems? What are these problems and how do people solve these problems? We will be talking about it. We already had a discussion on the two categories of workers, Kanta and Kamal. We saw that how Kanta and Kamal has been facing Kanta has not been facing any problem as she has been working in the organized sector, but the real problem that was being faced was by Kamal. Okay, large number of people are working. What we were talking about, the unorganized sector. And children, believe me that in India, majorly people are working in the unorganized sector, and that is the sector which is employing maximum number of people with lot of problems. तो सबसे बड़ी बात, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी एंड लेस वर्क इज देयर. तो क्या होता है ना, कभी भी लोगों को छोड़ने के लिए कह सकते हैं, दे कैन बी आस्क्ड टू लीव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. Got it? So large number of people are there employed on their own, doing small jobs like selling on the street, doing repair work. Similarly, farmers work on their own and hire laborers as and when they require. Okay, so just see these examples that are mentioned here. We will be about these problems. We will be discussing about these issues that are here. How are the people related to each other, and how the people who are related to different sectors, organized sector and unorganized sector, and the kind of problems they face. Now some examples are given here. आपको बताना पड़ेगा which of these are unorganized sector activities. अभी a teacher taking classes in a school. Now children, this is something very controversial. Why I am saying controversial is that कि a teacher who is taking classes in a school, there are two aspects. एक तो है government, एक है private. तो द टीचर हु इज टेकिंग क्लासेस इन अ स्कूल, तो हम इसको ये मान के चले, लेट अस कंसिडर इट दैट इट इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल. एंड इफ इट इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल, they all are related to each other. There won't be any issues, there won't be any problems अगर गवर्नमेंट. लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल है तो फिर अगेन द पर्सन कुड बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम. A head load worker carrying a bag of cement on his bag in a market, on his back. Of course, it is unorganized. I am just writing UO, unorganized. Okay. A farmer irrigating her field. Abhi it doesn't come in under any sector na. Now what happens? It is her own field. Try to understand. तो अगर अपने ज़मीन पे काम कर रहे हैं, अपने लैंड पे काम कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? आई डू यू थिंक इट इज़ एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर? वेल, व्हाई वी कॉल इट एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर? बिकॉज लॉट ऑफ प्लानिंग एंड लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ आर नॉट इन्वॉल्व देयर, जिसमें कि द फार्मर कैन अर्न मोर एंड मोर मनी ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस. गॉट इट? जो सबसे बड़ी बात ये है, ट्राई टू अंडरस्टैंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में one thing that is very common is lack of planning. Got it? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है. फार्मर इरिगेटिंग हर फील्ड अनऑर्गेनाइज में ही आएगा. अ डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल ट्रीटिंग अ पेशेंट, ऑर्गेनाइज्ड. अभी अगेन हॉस्पिटल इज प्राइवेट और हॉस्पिटल इज गवर्नमेंट. ठीक है, टू एस्पेक्ट्स आर देयर.
A daily wage. Look at the following examples. Which of these are unorganized sector activities? Try to understand. लेकिन डॉक्टर्स का जो है मेजरली इट हैपन्स कि जिस भी प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, इट इज़ नॉट एन अनऑर्गेनाइज. डॉक्टर्स जॉब इज़ देयर बिकॉज डॉक्टर्स आर ऑलवेज नीडेड. ठीक है, तो डॉक्टर्स जॉब इज़ टू बी organized. Daily wage laborer working under a contractor, of course this is very clearly an unorganized sector. Factory worker going to work in a big factory. Big factory है तो वहाँ पे the things might be organized. A handloom weaver working in her house. अपने घर में काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइज्ड ही होंगे, लेकिन इसलिए नहीं कहेंगे कि वहाँ पे छुट्टी कितना है, आप करते ही रहना पड़ेगा. दैट इज़ देयर. वहाँ पे आप को क्या होता है कि अगर आप नहीं काम करेंगे तो आपको फिर डेली बेसिस पे प्रॉब्लम होगी. ओके, नाउ जस्ट सी. टॉक टू समवन हु हैज़ अ रेगुलर जॉब. जस्ट लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. चिल्ड्रन, आई एम गोइंग थ्रू क्वेश्चन नंबर 2. Talk to someone who has a regular job in the organized sector and another who works in the unorganized sector. Compare and contrast their working conditions in all aspects. तो ये children you can, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी that you can definitely just see the examples of Kanta and Kamal. One thing that is always there when you answer these kind of questions, my dear children, it is first you talk about comparison, compare. ठीक है, 1 point, 1 point, 2 point, 2 point. Then you talk about contrast. ठीक है, उसमें कितने सारे हैं, is there any similarity and what are the differences? Got it? So how would you distinguish between organized and unorganized sectors? Explain in your own words. Of course children, again आप जो भी देखोगे आप एग्जाम्पल इसमें सेम ही है. It's the same thing. कांता एंड कमल का ही एग्जाम्पल आप लोगे बिकॉज कांता इज ऑर्गेनाइज्ड एंड कमल इज अनऑर्गेनाइज्ड. तो आपको वेरी क्लियरली यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. दैट इज़ देयर. और इसको आपको समझना बहुत अच्छे से ज़रूरी इसलिए है कि फर्दर व्हेन यू टेक अप सम जॉब और फर्दर व्हेन यू गो फॉर सर्टेन वर्क, तो आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड व्हाट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड. अनऑर्गेनाइज्ड में क्या चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड व्हाट वुड यू प्रेफर टू. आप कौन से सेक्टर में काम करना चाहोगे, ये समझने वाली बात है आपके लिए. ओके चिल्ड्रन, देख लो बेटा. The table below shows the estimated number of workers in India in the organized and unorganized sectors. Read the table carefully and fill in the missing data and answer the questions that follow. आराम से आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑर्गेनाइज दिया हुआ है, अनऑर्गेनाइज दिया हुआ है. प्राइमरी में देयर आर एंड द नंबर इज इन मिलियंस. All the numbers that are mentioned, it is all there in million. तो प्राइमरी सेक्टर में 1 million people are in organized sector. 232 is the total. तो अनऑर्गेनाइज में 231 million हो गए ना बेटे. Imagine so many people are there who are in unorganized sector. सेकेंडरी सेक्टर में 41 मिलियन, यहाँ पे अनऑर्गेनाइज में 74 है. टोटल यहाँ पे 115 हो गया. ओके. टर्शियरी सेक्टर 40 आर ऑर्गेनाइज्ड एंड इमेजिन, देखो टर्शियरी सेक्टर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज हियर, बट जस्ट लुक एट दिस नंबर 40 एंड 88. टोटल इज 172. तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, टोटल ऑर्गेनाइज में 82% पीपल आर देयर. टोटल नंबर्स आर गिवन हियर इन मिलियंस. 82 यहाँ पे हो गए. अनऑर्गेनाइज में आप देख लो कितने हो जाएंगे यहाँ पे.
231 आप कर लोगे यहाँ पे। जब 231 लिखोगे तो यू विल डू द टोटल हियर। $393 हो गया ये टोटल बेटा आप करोगे तो आपको यू विल बी गेटिंग इट वेरी क्लियरली। और उसके बाद 100%, ये परसेंटेज में इसको आपको कन्वर्ट भी करना है। सबसे पहले तो टोटल आप निकालोगे इन मिलियंस, वॉट एवर टोटल यू आर टेकिंग आउट दैट वुड बी इन मिलियंस एंड देन यू वुड बी कन्वर्टिंग इट इनटू परसेंटेज। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन एग्रीकल्चर? बेटा ये परसेंटेज निकालना पड़ेगा। यू हैव टू टेक आउट द परसेंटेज। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड परसेंटेज ऑफ पीपल इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन। तो यहाँ पे हमने कितना किया था? हियर इट वाज 393। अभी इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। प्लीज डू दैट बेटा। डू यू अग्री दैट एग्रीकल्चर इज एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटी? वाई? ऑफ कोर्स 231 मिलियन पीपल आर देयर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जहाँ पे 1 मिलियन खाली है तो उसको हम कैसे कहेंगे? वी आर नॉट गोइंग टू से एनीथिंग ना, क्या कह सकते हैं? ओके, वेरी कैन बी शोन। If we look at the country as a whole, we find that dash percentage of people of workers in India are in the unorganized sector. Organized sector employment is available to only about dash percentage of the workers. मतलब try to understand 82 का परसेंटेज निकालना है, 393 का परसेंटेज निकालना है। प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द परसेंटेज। और उसके बाद यहाँ पे 100%, ये यहाँ पे इसको टोटल करोगे तो 100 आएगा। उसको मतलब 100% आना चाहिए, इधर का टोटल भी 100% में ही आना चाहिए। सो चिल्ड्रन, सम ऑफ द कैलकुलेशंस दैट आर देयर, दैट इज व्हाट इज द रियल इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट। बिकॉज दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशंस यू हैव टू इकोनॉमिक्स, आप इससे बच नहीं सकते हो। माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। So dear students, I am sure you might be able to do the calculations here. Please find out the percentage. ये 82 को परसेंटेज में चेंज करना है। You can see the number of total is this by 100 into 82 is out of 100 एंड देन अनऑर्गेनाइज, इसमें 100% में से आपको निकालना है 82 इज कॉन्स्टिट्यूटिंग टू हाउ मच परसेंटेज। गॉट इट चिल्ड्रन? तो इसको आपको कर लेना है एंड आई नो यू ऑल कैन डू इट। नाउ टू अंडरस्टैंड दैट हाउ डू वी सेव द पीपल हु आर देयर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ओके चिल्ड्रन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। द पीपल हु आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, they are facing lot of problems on a daily basis. तो ये जब प्रॉब्लम्स ये लोग फेस करते हैं तो इनको इस प्रॉब्लम से बचाने का कोई तो तरीका होगा। देयर माइट बी सम वे आउट हाउ वी कैन सेव द पीपल हु आर देयर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। वेरी क्लियरली इट इज मेंशन, इट इज ऑफरिंग जॉब्स दैट आर मोस्ट सॉट आफ्टर। मतलब लोग चाहते हैं, एवरीबडी वांट्स टू वर्क इन दिस सेक्टर्स ना। एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेकिन द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट पीपल फेस इज दैट इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर देयर इज लेस ऑफ जॉब। गवर्नमेंट डजंट हैव मच जॉब। गॉट इट? सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर इज एक्सपैंडिंग, मतलब बढ़ रहा है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग, बिकॉज वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर्स इज इन इटसेल्फ अ वेरी बिग प्रिविलेज। लेकिन लोगों के पास इतना काम, गवर्नमेंट के पास इतना काम नहीं है कि इतने सारे लोगों को गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर पाए। उसके बाद वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड इट इज ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मेनी ऑर्गेनाइज सेक्टर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर।
ये ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. वॉट इज बीइंग सेड हियर, इट इज ऑल्सो कॉमन टू फाइंड दैट मेनी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेस in the unorganized sector. Means they try to show that they are organized sector, लेकिन unorganized ही होते हैं वो. They show it to the government that they are organized, but in practice, but in reality they are unorganized. Got it? क्या किस लिए करते हैं? They evade such strategies to, they adopt such strategies to evade. Evade means बचना, सेव. एंड लॉज दैट प्रोटेक्ट लेबरर्स. लेबरर्स के बारे में सोचेंगे तो अपना भला कब करेंगे? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो मेन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि लेबरर्स के बारे में सोचने वाले लोग बहुत कम हैं. द ओनर्स हु आर देयर, दे आर मेनली बिजी इन मिंटिंग मनी. अपना पैसा बनाने में ज़्यादा व्यस्त है. As a result, what happens? Large number of workers are forced to enter the unorganized sector jobs. Government के पास काम नहीं है ना. There is no work with the available with government. तो लोग कहाँ काम करेंगे? ऐसे खाली बैठे तो नहीं रहेंगे ना. They need to do some work. सो बहुत कम सैलरी में भी देयर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन. तो लोग जहाँ पे पर डे का हिसाब से, आई एम जस्ट साइटिंग एन एग्जाम्पल माय डियर चिल्ड्रन, दैट पीपल आर रेडी टू वर्क ऑन अ पर डे लेवल, जहाँ पे कि कम से कम पैसे में भी देयर आर 10 पीपल स्टैंडिंग इन अ लाइन. कि 500 रुपये में काम करेंगे, नहीं हम तो 450 में काम करने के लिए तैयार हैं, हम तो 400 में भी काम करेंगे. गॉट इट? So that is where the real problem comes out. Got it? So they are often exploited and not paid for a fair wage. ठीक से उनको सैलरी भी नहीं मिलती है. अर्निंग्स भी बहुत कम है. नॉट वेरी रेगुलर. मतलब सोचो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज फुल ऑफ प्रॉब्लम. अनऑर्गेनाइज्ड. That's why people always try hard to get into the organized enterprises. ऑर्गेनाइज में अगर चले जाते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, आराम से बचा जा सकता है. Got it? So their earnings are low and not regular. So these jobs are not secure and have no other benefits. है और अदर बेनिफिट्स मीन्स मेडिकल लीव, मैटर्निटी लीव एंड बहुत सारी लीव है जो कि आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में जॉब में आपको आराम से मिल जाता है. बट इन इरेगुलर सर्विसेज और अनऑर्गेनाइज सर्विसेज यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर जॉब्स. जॉब मिल भी जाए तो बेटा सिक्योरिटी नहीं मिलती. lot of examples are there. 1990 से क्या हुआ? It is also common to see large number of workers losing their jobs in organized sector. अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे, पहले तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये था, जॉब सिक्योरिटी नहीं थी. एनी टाइम द पीपल कुड बी चक्ड आउट ऑफ द वर्क. उनको मतलब जॉब से बाहर निकाला जा सकता है. लेकिन अभी क्या हो गया है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी दिस प्रॉब्लम इज कमिंग अप. जस्ट सी चिल्ड्रन, इट इज मेंशन्ड हियर, losing their jobs in the organized sector also. And what happens? The workers are forced to take up jobs in the unorganized sector with low earnings. So what happens कि besides the need for more work, there is also a need for protection and support of the workers in unorganized sector. काम तो चाहिए ही चाहिए, and along with that protection and support of the workers is very much required. Workers को किसी भी तरह से they need that the government should support them in all ways and means. Now just see children, very pathetic
picture is given here. Just see, when factories close down, just see, many once regular workers are found selling goods or pushing a cart or doing some other odd job. फैक्ट्री बंद हो गई, जहाँ पे वो काम कर रहे थे अब उनके पास काम ही नहीं है करने के लिए. सो व्हाट डू? दे डोंट हैव एनी ऑप्शन. भूखे तो नहीं मरेंगे ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम उनको करना है. सो दे आर डूइंग दिस ऑड जॉब. So people who are working in this are on an unorganized sector. Just see, who are these vulnerable people who need protection. Vulnerable means who easily are forced to work. मतलब बार बार जो लोगों को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है. वल्नरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट से जिनको प्रोटेक्शन चाहिए, स्पेशली इन द रूरल एरियाज. द अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्टली कंप्राइजेज ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स. हाँ, बार बार द पीपल हु आर गोइंग टू वर्क इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसमें वी फाइंड द लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, जिनके पास ज़मीन नहीं है, लेबरर्स हैं, लेबर कैटेगरी के लोग हैं. स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. मार्जिनल मीन्स हु डोंट हैव गुड इनकम. गॉट इट? शेयर क्रॉपर्स जो कि दूसरे की ज़मीन पे काम कर रहे हैं, एंड जितना भी वॉट एवर इज़ द आउटपुट, उसमें दे आर हैविंग देयर ओन शेयर. अपनी ज़मीन दूसरों के साथ मिला के दे आर डूइंग सम जॉब, दे आर डूइंग सम वर्क where they are made to do the work together. They are called as sharecroppers, and whatever is the output, उसमें sharecroppers get their own share. Suppose 10 acres of land is there, तो उसमें हमारा भी 1 acre land है, तो 1 acre land में I will be also having my share. जितना भी output would be there. Okay? And artisans such as weavers, blacksmiths, carpenters, goldsmiths, ठीक है, these are the people who are bound to work in the unorganized sectors. 80% of rural households in India are in small and marginal farmer category. ज़्यादातर जो गांव के लोग हैं, 80% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड इंडिया में जो हैं, दे आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी. एकदम जिनके पास की बेयरली मिनिमम टू कैरी ऑन देयर लाइफ्स, जिनके पास की पैसे बहुत कम हैं अपनी ज़िंदगी काटने के लिए. आई एम सॉरी चिल्ड्रन. इन फार्मर्स के लिए क्या करना चाहिए? व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू टू सपोर्ट दीज फार्मर्स? These farmers need to be supported through adequate facility for. सबसे पहले तो फार्मर्स को अगर टाइमली सीड्स मिल जाएगा, अगर इनको बीज मिल रहा है, प्रॉपर खेती ये कर पाएंगे, तो सीड अवेलेबिलिटी शुड बी प्रॉपर. एग्रीकल्चरल इनपुट्स, क्रेडिट, स्टोरेज फैसिलिटीज़ एंड मार्केटिंग आउटलेट्स. यू नो चिल्ड्रन, ये जो फार्मर्स होते हैं, जो कि लेबर कैटेगरी के भी, लेबरर्स का भी काम करने के लिए तैयार होते हैं, अगर इनको थोड़ा सा सपोर्ट गवर्नमेंट से मिल जाए तो देयर कंडीशन वुड बी वेरी गुड. 80% स्मॉल एंड मार्जिनल मीन्स जो बिल्कुल दे आर एट द एज, हार्डली, मतलब बेयर मिनिमम दे आर एबल टू अर्न. ये फार्मर्स जो होते हैं, इनको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है. कैसे? इफ़ द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स देम, जैसे सीड्स मिल जाए, एग्रीकल्चरल इनपुट्स मीन्स एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्ट, जो चीज़ें एग्रीकल्चर में ज़रूरी होती हैं,
If those things are available, credit is available, storage facilities are made, arrangements are made by the government, तो आप समझ लो कि इनकी काफ़ी सारी परेशानी सॉल्व हो सकती है. और उसके बाद इफ़ एग्रीकल्चरल आउटपुट्स आर गुड, अगर उन्होंने अच्छे से खेती कर ली, अच्छा उपज हो गया, तो सामान ले जाके कहाँ बेचेंगे? वेयर विल दे सेल देयर प्रोडक्ट्स? तो दे विल बी टेकिंग देयर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. तो इस तरह के मार्केट्स भी होने चाहिए ना. आपने सुना होगा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मंडी, विच इज द प्लेस फॉर होल सेल ऑफ एनीथिंग. मंडी में कहते हैं मंडी से लेके आओ, फूलों की मंडी, फलों की मंडी होती है, फूल की मंडी होती है, देर इज सब्जी मंडी. तो मंडी इज द प्लेस दैट इज ऑल, मतलब आई एम टेलिंग यू इन अ वेरी लोकल लैंग्वेज, दीज प्लेसेस आर कॉल्ड एज मार्केटिंग आउटलेट्स. शहरों में क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कंप्राइजेज मेनली ऑफ वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. इन द अर्बन एरिया, शहरों में मेनली द वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. Casual workers are there in construction. In the urban areas, children, always construction work is going on. हमेशा कोई ना कोई घर बन रहा है, कोई ना कोई तरीके से some or the other construction work is going on. तो laborers could easily get involved there. And those who work as street vendors, head load workers, garment makers, rag pickers, etc. Imagine. तो you all know these categories ना, street vendors, head load workers, सिर के ऊपर रख के और वो जो है अपना काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं. Then garment makers, rag pickers, कूड़ा उठाने का काम जो कर रहे हैं. तो small scale industry में भी they also need government support for procuring raw material. ऐसा नहीं है that big industries and the farmers only need these things. No, small scale industries also need government support, and casual workers are there in both rural and urban areas, need to be protected. डेली जो आके काम कर रहे हैं, कैजुअल लेबरर्स, ऑर्गेनाइज नहीं है वो. And what do we see? We also find that majority of workers are from scheduled castes, tribes and backward communities. ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्कर्स जो हैं, we are finding them caste based discrimination is also there. So we need to understand this thing, children, कि हम इतना डेवलपमेंट की बात करते हैं, वी थिंक वी आर सो डेवलप्ड, बट लुक एट द डिस्क्रिमिनेशन दैट इज बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम. अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में वी विल फाइंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल फ्रॉम द लोअर कास्ट, माय डियर चिल्ड्रन. तो इरेगुलर एंड लो वर्कर्स आर देयर. दीज वर्कर्स, व्हाट हैपन्स दैट दे ऑल्सो फेस, खाली ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी जगहों पे काम कर रहे हैं, दे ऑल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन. सो प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट इज बाय देम. अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इज दस नेसेसरी. इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट. अभी देखो, हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, हम पैसे की बात कर रहे हैं, हम अर्निंग की बात कर रहे हैं. नाउ वी कम टू द सेम इशू विच इज़ अ बर्निंग इशू इन टूडेज इंडिया, दैट पीपल आर ट्रीटेड इन अ वेरी बैड मैनर. गॉट इट चिल्ड्रन? तो अभी वी हैव टू रिकॉल जो अभी तक हम लोगों ने किया, दैट इज़ वॉट इज़ समड अप हियर. यहाँ पे इट इज़ गिवन इन डिटेल, इसको हमको समझना है, एंड देन वी हैव टू फिल अप दिस टेबल दैट इज़ मैंशनड हियर. ऑफ कोर्स वी विल बी डूइंग इट चिल्ड्रन, उसको हमको करना है. वी विल बी रिवाइजिंग इट अप, एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कंप्लीटिंग द चैप्टर
and followed the revision work. So children, what happens is कि अगर ये सारा अगर आपने इतना कर लिया, if you do it, तो you will be into a comfortable position. Economics का भी 2 chapters are over, so you can discuss your doubts in the forthcoming online sessions. Okay children, thank you children, and all the best to you children.